ओह माय गॉड, ये गलती आप कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्ट थोड़ा कम शो किया। आइए आइए। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. All right, Good very morning, good sir. morning, and sit and give me your file. All right. Good name, Rahul. Rahul Shah. Very nice. Please sit, Rahul. So, Rahul, please give me your very brief introduction. My name is Rahul Shah. I am from Karoli, Rajasthan. I have done my schooling from Kendra Vidyalaya Khichudipur, and I have Nice. done my diploma in education from Amar Jyoti Charitable Trust. Currently, I am pursuing my bachelor degree of arts All right. from Delhi, and I'm in third year right now. All right. And that's all about So, me. you have done your schooling from Kendra Kendriya Vidyalaya Khichudipur. Vidyalaya. All right. So, please tell me something about Kendriya Vidyalaya. How it is different from other schools? Sir, there are a lot of different between other schools and Kendra Vidyalaya. Kendra Vidyalaya are most likely providing a good facilities for the students and the teachers, like inclusive classrooms, a very different type of technologies, and different labs, work experience lab, computer lab, science laboratory for the senior students, and for the Basically, I am from DPS, right? Sir? But I have got all the first facilities that you are telling. How Kendriya Vidyalaya is different? Sir, I think Kendra Vidyalaya is one of the biggest respected organization, education organization in our country, and the facilities. Sir is from DAV. Okay, It's a very respectful. yes, sir. So how Kendriya Vidyalaya is different? Sir, the difference between DAV and Kendra Vidyalaya is No, just I'm not asking about DAV. I'm simply asking you how Kendriya Vidyalaya is exclusive, how it's unique, how it's special. That I'm asking you. Sir, Kendra Vidyalaya is unique because of their providing facilities to the student and teachers. I think that is the most important thing for all right. students. So you are basically from Karoli, right? Yes, sir. Tell me something about Karoli. Sir, Karoli is well known, famous for the Kela Devi temple right now, and thousands of devotees come there every year, every day. And the stone craft is also very famous of Karoli, especially the Karoli City Palace. And that is the reason the red sandstone is very popular. Okay. All right, Rahul, you tell me one thing. Sir, How will you adapt few special children in your classroom? sir, any specific disability or just general students? They are mixed, basically. Right? Inclusive classroom. Inclusive Okay, classroom. Sir, I have very adapting skills from the starting, and there is a lot of ways to adapt according to them, according to the Tell me children. something. So, for hearing impairment students, I will use a video with a caption, closed captions, and also I can use this for the low vision students with a large captions, and I can also use flashcards and very more ways that TLMs and flashcards, All right, all right. handmade TLMs, and Okay, continuing to your answers, supporting to your answers that you have told right now. Okay, according to the VI. All right. Now, suppose I am giving you a condition. Suppose this is map of India, right? Now, suppose you are teaching soil of the India. soil of the India. Yeah. Yes, sir. So, how you will teach soil of India to the VI students? You have to teach diagram, flowchart, map, whatever. Now, you tell me how you will teach. Take it. You have to demonstrate from there. How you will teach to the VI I can students? do one thing. This is the map, and if there is a need of a bigger map, I can draw by my own for the students that they can
touch by very comfortably. I use a different type of cottons with a low vision for it. It can be a different color cotton, and I will use a braille script for them so they can read a You can use it if it is here. the tailor frame and braille and cane. I'm very comfortable with that. All right. So how you will teach it? So, Matt, Yeah. sir, just I told that I use a different cottons, different type of cottons, and I can also use take a it. different beads for the different soil. So a student can differentiate between this. For example, Rajasthan, we can use a yellow cotton, yellow color cotton with a different type of beads, a circular, a rectangular, or a triangular beads, and we can go for when we go for a UP or Uttarakhand, we can use a different color of cotton. So a low vision student can also learn, and braille script that is very important for the low vision student. Okay. All right. Sit. Suppose if you have to teach geometry to the students, to VI students, what you will use? So there is a tactile geometry kit for the visual impaired students, and I'll use the tactile geometry kit. अगर बच्चे की स्पर्श करने की क्षमता कम है, मतलब वो टच अच्छे से नहीं, तो ऐसे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे अगर कोई चीज समझाना हो तो? And there is a lot of ways to train us is sensory training for the students. Firstly, we have to go for small things like I told you, just beats, different kind of beats. So they can first differentiate between the things. A circular, a triangular. This is we go for a specific subject like maths, and they can differentiate between the shapes, and the sensories is developed from the cotton also. Hardness, softness, they can differentiate these things, and that will help a lot for the students to enhance their sensory training. सेंसरी ट्रेनिंग आपको देनी है तो क्या हम इसकी हेल्प ले सकते हैं? Yes, sir. If if low vision students, they can use their remaining vision, but for a blind students, this is the cotton. We have to specifically told them that this is soft, and this indicates for the shape, because sheep has a soft hairs and woolen, we call that. My first touch and feel. My first touch and feel. So the softness of the cotton, which is indicates that the woolen of the sheep. Next. So this is for the dogs. Very Smooth and silky. very smooth and silky. Okay. Next. A cow, which has a sort of a very short hairs and देखिए, अगर आप कंफर्ट हिंदी में है ना, Yes, sir. प्लीज यूज इट, नो प्रॉब्लम, है ना? हाँ, बताइए. very short hair and a kind of roughness in that. Wow. Yes, sir. Says We also use verbally instructions for the students. And this is the different goat. Wow. We can use a meh sound for them. And the texture of the cotton, that there is a gap between them. If they have very enhanced sensory skills, they can easily identify that there is a lot of gap between the cotton. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसमें यही कहना चाहते, ब्रेन और ऑडियो Yes, ma'am. लर्निंग है, दोनों में बैलेंस बना के बताइए, दोनों को एक साथ. Ma'am, braille and audio. हाँ, वो कैसे एक साथ ही बताएंगे आप? For example, if I have to use audio of my introduction, first I have to write a braille script of my introduction and give to the students, and ब्रेक. thank you, sir. बताइए, कंटिन्यू कीजिए. And then if there is a facilities of a smart board, I can use a audio lessons or audio recording type of for the their listening skills, or that will help them coordinate between the braille and audio recording. Rahul, Yes, sir. very nicely
you have given Hmm. the first touch about. Yeah. My question is slightly different but related to your visually impaired experience. So, Candidate. My first touch fee. That's fine. You given a lady and ask the visually impaired students that how you feel. Definitely the candidate would say, yes, it's so silky and smooth. Suddenly you would say some words, bow, 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 bow. Definitely the candidate identifies job. it's a dog. Hmm? And likewise same in rest of the touch and feel. My question is, do you think that having visual impairedness, Yes, sir. the candidates have an advantage to having more advanced sensory nerves so that they could able to identify by touch, give a tag or a name as per your sounds, and remember it forever, the whole life. Yes. This is the grainy touch, this is sticky touch, this smooth, so that they could able to identify the different animals and different objects and whatever they need in it. So my question is, do a visually impaired candidate need some more or extraordinary sensory development? Is it true or not? सर उन्हें टाइम के साथ साथ अपनी सेंसरी ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है. जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में और ग्रो करते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं, उनके साथ साथ ट्रेनिंग स्किल्स और सेंसरी स्किल्स और ज्यादा डेवलप होती जाती है. एंड ये उन्हीं के लिए बहुत जरूरी होता है. वो इंडिपेंडेंसी को दिखाते हैं, शो करते हैं कि वी आर इक्वली इंडिपेंडेंट एज अ अदर पर्सन और इन देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट. So my next question is, do you think this is can be categorized as adaptability or this is by nature in these VI candidates? सर मेरे अनुसार ये अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं भी आगे जाके सेंसरी स्किल्स सीखना चाहूंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा तो मैं वो कर सकूंगा थ्रू द ट्रेनिंग. एंड दिस इज सर ऑफ कोर्स एन अडेप्टेबिलिटी. Sir, can we check the mobility if you... Yes, yes. How will you implement orientation and mobility training in a school like NVS? How? Sir, orientation and mobility is the main thing they have to learn first, because they have to walk by own hand with the help of the cane. So this is the, I think, one of better you show me a demonstration. Yes. yes sir, of course. Mobility. Better to say so the demonstration, right? Because अभी आपने कुछ देर पहले बोला सर को कि आप उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, Yes sir. है ना? तो क्यों नहीं उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं? और लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा है जी, कि पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है, बहुत ज्यादा वीआई बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं. हाँ बिल्कुल, बेशक. तो आप वैसे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे? सर हम कुछ भी चीजें डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज ओवर पॉजिटिव होना, ओवर प्रोटेक्टिव होना कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर सकता है. अगर हम कुछ ऐसा टैग दे या ऐसी कोई लाइन बोले जिससे उनके पेरेंट्स को हर्ट हो उनके बच्चों के लिए, सो वी हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव अप्रोच. वी हैव टू फर्स्ट टेल देम दैट योर चिल्ड्रन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द मैं समझ पर्टिकुलर रहा एरिया. हूँ और कि आप सर के क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझ पाए. सर ने आपके आंसर को ही कंटिन्यू किया था अभी. सॉरी सर. तो कैसे आप जो उनके पेरेंट्स को... Demonstrate the mobility. यस सर. Just do it. Come on. तो सर इनको हाँ बांध ही देते हैं, है ना? चलिए. सर का हाँ श्योर सर. सर के Yes.
Thank you, sir. Yes, sir. Sir, please give him instruction. आपको जो है व्हाइट पेन के यूज आपको बताने हैं Yes, sir. कि एक वीआई स्टूडेंट जो है इसका यूज कैसे करेगा और इसके रूल्स क्या क्या है, ठीक है। और आपको जो है विद मोबिलिटी आपको उसको यूज करके बताना। सर फर्स्टली ये मोबिलिटी के लिए ही काम आता है। इफ आई हैव टू गो टू द डोर आई कैन गो विद द हेल्प ऑफ द केन। राइट हैंड 120 डिग्री। Sir, I'm at the door right now, and the technique I used, this is called a 3-touch technique, but I'm a little bit used in the middle of 2-touch and 3-touch both of, and there are rules also to use the cane. If I have to go on the stairs, the white cane used as the or like this, and from one stair to every stair, the tip of the cane is connected. So when I go, the stick goes to the second stair, third stair, and fourth stair like that. And ठीक है, अब आपको अपनी सीट पे आके बैठना है। 60 degree, you're right. Now, slightly 30 degree to your left. Two step back. 60 degree left. ठीक है. Two step ahead. No, you have to sit. Stop. Now 90 degree front towards the panel. Thank you. Now you can take off. Nice, nice. Thank you very much. Nice demonstration. Yeah. Give it to me. चलिए। So, Mr. Rao, yes, sir. आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराते हैं, अब ये पाते हैं कि जो वीआई के बच्चे हैं उसको भी आपने उस साथ में रख के एक्टिविटी के लिए जो है कहा है। अब ऐसा आप पाते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी हैं उसमें, वो बच्चे वीआई के बच्चों को जिनको जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, उसको वो कह रहे हैं कि आप यहां से जाइए, उसको वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? सर पॉजिटिवली लेना होगा हमें ये चीज, हमें माननी होगी ये चीज कि शायद बच्चे अवेयर नहीं है उस तरीके से कि उन बच्चों को भाई सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, वो भी उन्हीं के साथ पढ़ते हैं, उन्हीं के दोस्त है। तो सबसे पहले हमें ये समझाना होगा कि वो अलग नहीं है, या फिर उनकी वजह से आपको कुछ दिक्कत नहीं है, या आपके से उनको कुछ दिक्कत हो। हमें दोनों को एक साथ कोलैब करके दोनों को एंगेज करना होगा मिलकर ही, जिससे कि वो भी कुछ सीख सके एंड वीआई का बच्चा भी कुछ सीख सके। वो बच्चे कहते हैं आपको कि सर हमारे परफॉर्मेंस पे इसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सर आई डोंट थिंक सो कि परफॉर्मेंस पे कुछ अफेक्ट पड़ना चाहिए। और जहां तक हैंडल करने की बात है तो जर्नल बच्चा भी एक स्पेशल नीड बच्चे वाले के साथ मिलकर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, जैसे कि ब्रेल सीखना या फिर मैथ के टाइम पे टेलर फ्रेम सीखना, अबेकस सीखना। तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में और एक्स्ट्रा करिकुलम में ये चीजें ऐड होती हैं जो कि वो सीखते हैं उनके साथ मिलकर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं जिनको कि नॉर्मल स्टूडेंट कह रहा है कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहिए। Exactly, up to what extent I understand, you want to say that positively if we take a teacher अगर पॉजिटिव स्कूल दे तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो वीआईस के लिए है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम। यस सर।
सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक आर्ट इंटीग्रेशन, Art integration. दे आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. Yes, sir. श्योर. ओके राहुल जी, आपको बताना है कि एज ए टीचर, बीइंग अ टीचर, जितने भी जो भी बच्चे आपके क्लास में वीआई वाले, उसके अंदर आपको इनर विजन डेवलप करना है, आंतरिक दृष्टि उसके अंदर उत्पन्न करना है। तो ये स्किल्स, ये चीजें आप कैसे उसके अंदर डेवलप करेंगे? Sir, with your permission, आंतरिक विजन as in creativity और imagination. तो सर ये तो आप बताइए क्या है? सर एक बच्चे की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एनहेंस करने के लिए मुझे बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैं किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज को एक एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करके या फिर किसी एक्टिविटी को किसी स्टोरी लाइन से कनेक्ट करके उनकी इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहेंस कर सकता हूँ ताकि वो और अच्छे से पार्टिसिपेट करें। चलिए एक काम करेंगे, इसको सब पे दोबारा हम लोग आएंगे, है ना? अभी आप जो है एक टॉपिक लीजिए, है ना? क्या लेना चाहेंगे? सर Demo teaching के लिए। क्लास EVS चैप्टर 4 आर स्कूल। अच्छा, आइए पढ़ाइए। Sir, with your permission, may I assume this panel to be my classroom? Thank you, sir. Good morning, students. कैसे हो आप सारे बच्चे? तो आज मेरे को बताओ सबसे पहले कि एक्टिविटीज करना किस किस को पसंद है, या फिर कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है मेरे से, या फिर आज हम एक्टिविटी करें। आज हम कोई ना कुछ तो अच्छी चीजें करेंगे, या तो एक्टिविटी या फिर कुछ स्टोरीज, दोनों ही करनी है। अच्छा, तो हम दोनों कर लेते हैं, हम स्टोरी भी करेंगे और हम एक्टिविटी भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपने ड्रीम में एक स्कूल को कैसे देखते हैं, या फिर आप इस स्कूल को एक ड्रीम में कैसे देखते हैं। सबका अपना अपना ड्रीम स्कूल होगा ना बच्चों, कि हमारे ड्रीम में ये स्कूल ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो आप उस ड्रीम में अपने स्कूल को किस तरीके से देखते हैं? मुझे सारे बच्चे कुछ ना कुछ आंसर जरूर देंगे। अच्छा, बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, वेरी नाइस। सबको अपनी अपनी कंफर्टेबल जोन के लिए सबको कुछ ना कुछ चाहिए। बिगर क्लासरूम, ओके, दैट्स गुड। और भी सारी काफी चीजें हो सकती है। हमें एक स्कूल में सबसे पहले जो चाहिए होता है वो होता है, अभी आप देख रहे होंगे हमारी क्लास में कैसे छोटा छोटा एक कूड़ा पड़ा है, डस्टबिन होने के बाद भी बच्चे पेपर फेंक रहे हैं। आप लोगों ने फेंके होंगे पक्का ये। तो हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको नहीं लगता हमारी पहले क्लासरूम से हमें स्टार्ट करना चाहिए और वो क्लीन होनी चाहिए, और ऐसे ही हमारा स्कूल भी क्लीन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो हमें यही नोट करना चाहिए ना कि हमारा स्कूल क्लीन होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए बुरी बात है कि हम स्कूल को क्लीन रखेंगे। अच्छा, और आरफ को मैंने बहुत बार देखा है कि आरफ गार्डन में जाके बैठता है। तो आरफ को गार्डन पसंद है या फिर क्या पसंद है? अच्छा, ग्रीनरी पसंद है आपको। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि ग्रीनरी किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम गार्डनिंग स्किल्स को और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको आती है आरफ गार्डनिंग स्किल्स? थोड़ी थोड़ी, जैसे कि ये गार्डनिंग स्किल्स नहीं है, घास उखाड़ना, वो आप अपने मजे के लिए करते हो, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें गार्डनिंग के लिए सबसे पहले तो पानी देना या फिर फूल पौधे प्लांट छोटे मोटे लाना So अपने घर basically, में। what you want to teach? सर, आवर स्कूल अ क्लीन स्कूल, अ Cleanliness. हैप्पी प्लेस। Okay. School is a like happy place for the students. Okay. Please tell me any quotation from cleanliness. सर, what? कोई एक कोटेशन बताइए, जो आप टॉपिक ले रहे हैं ना, उसके लिए कोई कोटेशन दीजिए। जो स्कूल प्रेमिसेस में लिखा होता लिखा है। होता है। सर, गो ग्रीन एंड सॉरी सर, हम भारत कौन सा अभियान चला रहा है इस पे? स्वच्छ भारत अभियान। लोगों में किनको दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है लोगों में? सर, लोगों से स्वच्छ भारत अभियान को इसी तरीके से रिलेट करा गया है कि हमें सड़कें साफ रखनी चाहिए। लोगों में क्या दिखता है? स्वच्छता भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसमें क्या दिखता है लोगों में? सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, आइए सर, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट? तो
आप ये बताइए राहुल जी, Yes, sir. टेलर फ्रेम और अबेकस, इन दोनों में से आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अगर हमें बच्चे को ज्योमेट्री सिखानी है तो? ज्योमेट्री के लिए सर हम टेलर फ्रेम का यूज करेंगे। क्यों? तो सर अबेकस में आई थिंक सिर्फ एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बच्चे के कंफर्ट के अनुसार ज्यादा अच्छे से हो सकता है, जबकि ज्योमेट्री उसके कंफर्ट के अनुसार टेलर फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जा सकती है बीट्स के थ्रू। क्या आप हमें टेलर फ्रेम का यूज करके और 1 to 10 काउंटिंग बता सकते हैं? यस सर, Yes. थैंक यू सर। सर दिस इज द स्पेस जहाँ पे हम हमारी बीट्स को रखते हैं। एक वीआई स्टूडेंट को या फिर जनरल बच्चों को, स्पेशली वीआई को हमारी फील्ड में बताया जाता है कि हमें हमारे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जो भी वैसे कंफर्टेबल हो बच्चा, हमें ये ओपन करना होता है। Then जिस साइड से हमेशा हम ओपन करते हैं उसके कॉर्नर से हम हमेशा हमारी काउंटिंग ज्यादातर स्टार्ट करते हैं। एक ये वैसे कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए काफी अच्छा मेथड है कि बच्चा एक हाफ मेजर करके सेकंड पे पहुंच सकता है, देन दोबारा थर्ड पे पहुंच सकता है। बच्चों को पता रहता है कि यहाँ पे फर्स्ट है, ये कॉर्नर है, तो मिडिल में सेकंड होगा, देन उसके ऊपर का कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, वो थर्ड होगा, देन अगेन मिडिल 4 5 6 7 8। अब हमें 9 लिखना होता है, जिसके लिए हमारे पास ये बीड होती है। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा अपनी सेंसरी स्किल्स के थ्रू पता लगाता है कि ये इस पे सेट कितनी होती है? सर ये बीट्स काउंटिंग के लिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करी जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, जबकि एक दूसरी बीट्स भी होती है जो एडवांस या फिर एक अपर लेवल मैथ्स के लिए यूज करी जाती है। तो फाइनली आपको जो है आप जो है आपने ये बता दिया है कि 1 से लेके 8 तक हम आसानी से स्टूडेंट को सिखा सकते Yes, sir. हैं, बट अब हमें उसे जो है डिजिट सिखाना है, वो 9 और 10 सिखाना है, तो कैसे? सर हमें जैसे अगर बच्चे को ये पता है कि इस बीट के साथ वो 8 तक काउंटिंग इजीली कर सकता है, हमें बताना होगा कि देयर इज अ सेकंड शेप, हियर इज आल्सो द 2 डॉट्स। Very good. सो बच्चा जब इसी बीट को अपोजिट साइड से प्लेस करेगा और वो 2 डॉट्स किसका अपोजिट होगा? कौन से नंबर का अपोजिट होगा? सर वो फर्स्ट नंबर का अपोजिट 9 होता है, तो फर्स्ट का अपोजिट एक तरीके से हम बच्चे को ये इजीली सिखा सकते हैं कि 8 के बाद 9 आता है, एंड देन वो 9 इंटरचेंज कर लेता है सिर्फ बीट्स के साथ, एंड जिस बीट को अपोजिट करने से और कंटिन्यू उसी लाइन में चलने से वो 9 आ जाता है, एंड सेम उसी लाइन को कंटिन्यू करने से 0 आ जाता है। तो जब इस बीट्स को जो 2 डॉट वाली बीट है बच्चा सेकंड की तरफ प्लेस करेगा तो एक्चुअली 0 की तरफ है, क्योंकि ये हम 2 डॉट्स वाली यूज कर रहे हैं। बैठे ठीक है, हो गया, ऑलराइट। Alright, now, so last question from the panel यस सर। and continuing the search question, please sit. सर ने भी आपसे कुछ देर पहले बात की थी इनर विजन को लेकर के, यस सर। am I right? ठीक है, चलिए तो एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पे हम आपसे बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा जॉन मिल्टन सर का, जॉन मिल्टन। नो सर, सॉरी। ओह माय गॉड, जॉन मिल्टन का नाम नहीं सुना है? नो सर। ओह माय गॉड, काल प्लीज सर। सूरदास जी का नाम सुना है? यस सर। कौन थे? सर हमारे हिंदी उपन्यास के लेखक थे। सर के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सूरदास, he was visually impaired by birth, यस सर। right? He portrayed Lord Krishna in a way, in a style that you worship the Lord Krishna in the same design and portrait that has been given by Surdas. Given by Surdas. To a visually impaired candidate, how it is possible to make such a absolute imagination? Sir, yes.
it is possible. But if we just connect with the Surdas, the example, then he created the same portrait of the Lord Krishna's through his inner vision. Visual impaired children, or maybe anyone who are having no eyesight or vision, they can create or they can portray anything according to them, what they thought, their inner thought says, or their Okay, inner vision agreed up says. to some extent, but you are going to answer. Now, the second phase of the same question. As we have taken the Surdas Ji, and previously that sir asked you about the John Milton. We are not going to compare history. The thing is that when a by birth blind person make such a historic epic about the Lord Krishna through poetry, being as special educator, can you ignite the inner sense of a student? If yes, then what qualities must be there in a student as well as in a instructor? Sorry, sir, but I have no Can you idea. name one famous personality who is visually impaired, and you can say he was blind by birth, okay, and he has received a Padma Shri award in India. Do you remember that famous personality? Sir, I'm not aware of that. Padma Shri and born blind, but I know a person, Ravindra Jain, who is a very famous music director and singer in our music industry, Yes. and he's really good. क्या महाभारत का भी कोई एक ऐसा पात्र बता सकते हैं? Sorry, sir, at this time I'm not recalling. एक और क्वेश्चन, ये जो ब्रेल लिपि है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे आजकल ऑडियो टेक्नोलॉजी है, क्या ब्रेल लिपि खत्म हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? सर, आई थिंक ये सबसे नेचुरल तरीका है ब्रेल का और सबसे पुराना तरीका है. खत्म तो शायद नहीं होगा, इसी को और एनहेंस और मॉडिफाई करके इसके काफी सारे वेरिएशंस आ सकते हैं. चलिए एक आप श्लोक सुना दीजिए वीआई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो मोटिवेट हो जाए, है ना? सॉरी सर. ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उनको इंस्पायर करे कि हाँ हम ये कर सकते हैं. We can go for the stories of the other person who are very famous and. चलिए एक लाइन में बोलता हूँ, बाकी उसको आप कंप्लीट कीजिए. Okay, sir. अस्तो मां सदगमया. आगे बोलिए. तो मां सदगमया जो तेरा. नहीं आगे Sir, this is the prayer, but currently I have serious no idea of अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. है ना. तमस मतलब अंधकार, है ना. मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो. यहाँ पे किस अंधकार की बात हो रही है? Sir, surrounding or environment. आप इस पे काम कीजिएगा ना. ठीक है, हम यही रुकते हैं. और ये जो बुक देख रहे हैं ना आप, जॉन मिल्टन सर की बुक है ये, एंड पैराडाइज लॉस्ट. और इनकी जो स्थिति थी, है ना, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, काम कीजिएगा. इनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल वीआई, ठीक है ना, विजुअल इम्पेयर्ड. और उसी स्थिति में इन्होंने इस पूरे बुक को लिखा है, पूरे बुक को लिखा है उसी स्थिति में. इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? और सर भी सूरदास जी की बात कर रहे थे, ठीक है ना. और फिर इनर विजन की सर ने बात की. गॉट इट. Yes, sir. इस पे काम कीजिए, है ना. जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो उस पे बहुत डीप होना चाहिए. ठीक है, हम यही यहाँ पे इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं और हम बात करते हैं आपके फीडबैक्स पे. राइट. Yes, sir. चलिए, देखिए अच्छी चीज आप ये है सर कि मुझे आपका नॉलेज अच्छा लगा, है ना. अगर हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को छोड़ दें तो मुझे आपका नॉलेज अच्छा लगा. आपने क्वेश्चंस को काउंटर भी अच्छे से किया. फिर वही जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस थे उसको छोड़ देते हैं कंडीशन बेस्ड को, तो काउंटर आपने ठीक ठाक किया. अच्छा लगा मुझे देख के. अच्छा, जहां पे आपको काम करने की आवश्यकता है, तो पहली चीज है कि आप कभी कभी आंसर्स को बहुत अधिक लेंदी कर देते हो, इलेबोरेटिव हो जाते हो बहुत ज्यादा, है ना. आपके पास स्टेटमेंट में आंसर नहीं होता, है ना.
आपके पास विंडो वर्ड्स नहीं होते, तो ये काम करने की जरूरत है आपको। आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, अपने आंसर्स को बहुत लेंदी ले जाते हो, तो इस पे आप काम करो, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग जो बहुत अधिक काम करने की आपको जरूरत है ना, ये गलती आप कैसे कर सकते हैं, आप जब भी क्या होता है ना कि कोलिजन होता है, कोलिजन, समझ रहे हैं? एक अच्छा इंटरव्यू, एक अच्छा कन्वर्सेशन में कभी कोलिजन नहीं होता। जैसे पैनल ने कुछ बोला, स्टार्टिंग में बहुत जगह ऐसा हुआ है, जैसे पैनल ने कुछ कहा, यू कीप क्वाइट, नाउ लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, गॉट इट। तो कोलिजन कभी नहीं होना चाहिए। पैनल जैसे ही स्टार्ट किया अपने क्वेश्चन को, यू कीप मम एंड लिसन इट केयरफुली, राइट? सो यू शुड वर्क ऑन दिस, राइट। नाउ आपने जो एक जगह जिक्र किया था कि मैं एडाप्टिव हूं नेचर का, लेकिन उसी क्वेश्चंस का आप आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो मतलब अगर आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं मैं हूं एडाप्टिव, तो उसको आप जस्टिफाई कीजिए, अदरवाइज डोंट स्पीक इट, ठीक है, क्योंकि वहीं से इंटरव्यू फिर और खराब हो सकता है। राइट, चल नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके पूरे इंटरव्यू में देखा, जो मैंने पाया, आपको जो अपने फ्लो पे काम करना चाहिए। फ्लो मिसिंग है, फ्लो ना, फ्लो नहीं है। जो एक फ्लो होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, वो नहीं, उस पर आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आप मिरर के सामने बोलिए, आप मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से, ठीक है। मतलब एक इफेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, स्वैन इफेक्ट, इस पर रिसर्च कीजिएगा, स्वैन इफेक्ट, है ना। तो फ्लो चाहिए, ठीक है। आपकी आंखें जो है रैंडमली क्लोज होती रहती है, तो इस पे थोड़ा वर्क कीजिए आप, है ना। आंखें बहुत क्लोज, मतलब रैंडमली क्लोज होती रहती है, इस पे आप वर्क कीजिए, है ना। आई कांटेक्ट, मतलब वही घुमा फिरा के बाद आई कांटेक्ट में काम कीजिए, इट शुड बी विद एवरीवन, राइट। एंड सेकेंड टाइम जब आपने इसको यूज किया तो वहां तो आपने परमिशन लिया, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप यूज कर रहे थे तो आपने परमिशन नहीं लिया था। तो ध्यान रहे कि व्हाटएवर आप कुछ भी यहाँ से लेंगे, इट्स अ कर्टसी दैट यू आस्क अ परमिशन, राइट। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी आपने एक दो जगह मेरे को आपने शब्द का इस्तेमाल किया, ये नहीं, इनफॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट थिंग, जब आप टीचिंग करा रहे थे तो टीचिंग में तो क्या, डेमो टीचिंग को बहुत अधिक सुधार की जरूरत है, बहुत अधिक सुधार की जरूरत, मतलब बहुत समय ले लिया आपने टॉपिक पे आने के लिए। अच्छा, वहां पे जो एक आपका जो बॉडी लैंग्वेज जो मुझे बहुत खराब लगा, वो ये था कि आप ऐसे क्लोज कर लिया था, आपने यूं ऐसा क्लोज किया था, ऐसा किया था ना। आप जब भी इसे करते हैं ना, इट शोज योर क्लोज्ड बिहेवियर। जो वहां साइकोलॉजिस्ट होंगे वो आपके बारे में यह आकलन करेंगे कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, क्लोज्ड है, क्योंकि नहीं, शुड बी ओपन, टीच लाइक अ चैंपियन, राइट। मतलब और उसी वक्त आप कभी इधर देख रहे थे, मतलब आपका आई कांटेक्ट पैनल से नहीं था। फेस द पैनल व्हाइल यू आर टीचिंग, जब आप टीच कर रहे हैं तो पैनल को फेस कीजिए। और आपने कहा कि मैं एज्यूम इट एज ए क्लासरूम, फिर फेस कीजिए, वहां पे आई कांटेक्ट आपका अच्छा नहीं था। डेमो टीचिंग को बहुत काम करनी पड़ेगी, डेमो टीचिंग को बिल्कुल नॉर्थ साउथ जो होता है ना, बिल्कुल यूं टर्न करना पड़ेगा आपको, उस पर काम करनी पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपने जॉन मिल्टन के बारे में नहीं बताया तो थोड़ी सी तकलीफ हुई मुझे। आपको ये सब्जेक्ट है, आप कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल तो थैंक्स टू सर कि सर ने कंटिन्यू कर दिया सूरदास जी के बिला ठीक है। ओके, सूरदास इज नोन एज द व्हाट, डैश ऑफ इंडिया, John Milton of India. इंडिया, गॉट इट। राहुल जी, जो एक हमें बहुत ही सॉरी एक छोटा सा रह गया मेरा पॉइंट, मैं बोल ही देता हूँ, मैं लिखा था लेकिन मुझे भूल गया। आप जो है आप केंद्रीय विद्यालय से हैं और आपसे पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है, तो बता नहीं पा रहे, है ना। ये मैं भूल गया था, मैं बताना, ये पता होना चाहिए आपको, क्या मेन डिफरेंस है, इस पे वर्क कीजिएगा, है ना। सर ने 3 स्कूल का नाम लिए, हाँ, डीपीएस, डीएवी एंड केंद्रीय विद्यालय, है ना, ठीक है। तो उस पर वर्क कीजिएगा। तो सबसे जो मेन एरिया पे आपको काम करना है कि आपकी एनर्जी लेवल ना थोड़ा सा डाउन लगा, है ना। जो एनर्जी लेवल मेंटेन होना चाहिए था, और जो आंसर देने टाइम कई बार आपने इंटरेस्ट थोड़ा कम शो किया, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, सर ने आपको बताया आपकी आईज कांटेक्ट ठीक है, मेंटेन तो सब सब कर, लेकिन अब कई बार ना आईज नीचे भी जा रही है, तो अपने आईज को ना बिल्कुल पैनल को फेस करते हुए, ठीक है। और एक और जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें बहुत ज्यादा मिसिंग है, कंडीशन बेस्ड में काम है ना, कीजिए, उस पर आपको ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। और कुछ फैक्चुअल डेटा है,
उस पर भी काम करना है। और एक जो आपकी अच्छी लगी हमें, वो टीएलएम का नॉलेज हाँ। आपके पास अच्छा अच्छा है। आपने अच्छा जो है डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। और ये जो फ्रेम था इस पे भी आपने अच्छा किया, अच्छा yes. किया, ठीक है। तो ओवरऑल गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज है आपके पास, बस थोड़ा सा उनको आप सेव दीजिए, ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। राहुल जी, there are good candidates, no doubt. टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, कोई बीट नहीं कर सकता। थ्योरेटिकल नॉलेज भी ठीक है, एवरेज। लेकिन जो मुझे आप में सबसे बड़ी कमी नजर आई है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंटली आंसर करने में और सिर्फ आंसर करने में बहुत बड़ा फर्क है। सही बात। और वो आपका दिख रहा है, जो सर ने भी, दोनों ने आपको बताया है। और आई कांटेक्ट, जैसे ही आप किसी आंसर का जो क्रूशियल फेज पर आते हैं, आंसर के स्टार्ट सही करते हैं, लेकिन जैसे क्रूशियल उसके एसेंस पर, सेंटर आइडिया पर आते हैं, आपकी आईज जो होती है वो ब्लिंक करने लग जाती है, मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो बंद हो जाती है। और ये इस चीज को दिखाता है कि यू आर गेटिंग समथिंग लर्न अगेन, आप कुछ रिवाइज कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ये आपके लिए ठीक नहीं। और इसका सही तरीका सर ने बताया आपको कि बिल्कुल मिरर के सामने रही, अपने आप से बात, ठीक है। और एक चीज भूल जाइए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और सच में आपको टेक्निकली, थ्योरेटिकली आपका नॉलेज बहुत अच्छी। चौथी चीज, डेमोटिक चीज, कहीं भी सिलेक्शन का ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। ऑन योर फेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, assuming classroom and delivering a demo there, never be assess for your theoretical knowledge, for your technical knowledge. It is all about the panel going to feel, the panel going to record your competency. कि आपने जो ये सीखा है और आप जो नॉलेज है उसको आप कितने इफेक्टिवली प्रैक्टिकली डिलीवर कर सकते हो, यानी कि आउटपुट आपका क्या। और इसके लिए सर ने आपको बताया कि आपको एक तो जो स्टार्टिंग है वो शॉर्ट रन इम्पैक्ट, और इसको लाने का एक बहुत सीधा सा सजेशन मेरे पास है। ये एक्चुअली टूल है, टेक्निकली टूल है, जो कहा जाता है कि वेन एवर यू एंटर इन द क्लास, पॉज फॉर 30 सेकेंड, फेस द होल क्लास विथ आई कॉन्टेक्ट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव द कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स एज वेल। उन्हें लगेगा कि नहीं यार, टीचर आया है तो इसको सब पता है, ठीक है। ये करें, यानी कि जब डेमो टीचिंग पर आप आए, परमिशन लें, 30 सेकेंड ऑफ पॉज लें, और ये ध्यान रखें कि आपको स्टार्ट कहाँ क्या करना है, और वो छोटा सा एसेंसिव होना चाहिए। एंड देन आफ्टर प्ले द गेम एज यू आर द चैंपियन। टीच लाइक अ चैंपियन। यस सर। सारी बातें वैसे सर ने ही आपको बता दी, सारे फीडबैक्स सर ने दे दिए, बाकी बचे नहीं। ये फिर भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा फीडबैक मैंने भी निकाला है। तो वो ये है कि सर ने कहा कि सिचुएशन बेस्ड और कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे
वो आपका वीक जोन रहा है। अगर इसे स्मार्ट जोन बनाना है तो आपको टेक्निकल टर्म्स पे काम करना हो, ठीक है। क्योंकि हर सेगमेंट, हम बात करें IDD, HI, VI, इनमें कुछ टर्म्स होती है और उन टर्म्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर और भी स्मार्ट हो जाएगा। आपका आंसर स्मार्ट होगा तो आपके कंडीशन बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड आंसर, ठीक है, तो सुपर हो जाएंगे। वो सुपर है तो आप भी सुपर हो जाएंगे। और मेरे से आपको कहा ही है कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो मोस्टली आपको इस पे भी काम करना है। बाकी सर ने कहा हम पे तो आपको काम करना ही करना है। ठीक है राहुल जी। और KVS में पढ़ के, है ना, KVS के बारे में नहीं बताना कि वो कैसे और उससे अलग है। Sir, I got just confused. ठीक है, इट्स लो कॉस्ट, ओके, इट्स फॉर It's a low cost and infrastructure wise काफी ज्यादा वन ऑफ developed द है बिगेस्ट चेन, और सबसे you know, बड़ी चेन है ओवरऑल वन ऑफ इंडिया द में। बिगेस्ट चेन, ओके। एंड फॉर द जो एम्प्लॉयज होते हैं, सेंट्रल जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बच्चे के लिए सबसे जो है सुटेबल है, Yes, sir. क्योंकि करिकुलम में कोई फर्क नहीं होता, उनका कहीं भी ट्रांसफर होगा, बेस्ट फॉर दिस। और जो सबसे मेन मुद्दा था जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, इट्स ए गवर्नमेंट, DPS इज नॉट गवर्नमेंट, DAV इज नॉट गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट। ओके राहुल, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.